हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशी पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव था आपका टू परफॉर्म अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजिंग सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को यूज करके, उन दोनों का उपयोग करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करना था। ठीक है ना? दोनों में होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका सबसे पहले एक्वा सोल्यूशन लिए जाते हैं, जिसमें कि आपका जो भी कंपाउंड है अपने आयनों में टूट जाता है। देन आप जब दोनों कंपाउंड्स को मिलाते हैं आपस में, तो उनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है? जब आयन का एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद आपके नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है? ये तीन टाइप की रिएक्शन हमने देखी थी। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी आई थी, एक आपकी आई थी यहाँ पर जो आप कह रहे थे कि जहां पर गैस फॉर्म हो रही है, एक इनसॉल्युबल टाइप की, और इसके अतिरिक्त हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात यहाँ पर की थी। ठीक है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपने बोला था मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वहां पर भी आयन का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, तो वो भी हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। ओके? और थर्ड वन इज जहां पर जो गैस फॉर्म हो रही है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की हम लोगों ने बात की थी। ओके? तो इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। हम इसके वीडियो पर आए थे कि वीडियो हम इसका देखते हैं। ठीक है? चलिए। Double displacement reaction. Chemical reactions are part of our daily life, from photosynthesis occurring in plants to cooking of food in the kitchen. There are different sets of chemical reactions happening around us. A chemical reaction happens when two or more elements interact together to form a chemical bond between atoms and form a chemical compound. Chemists have classified the chemical reactions into 4 different types depending upon the type of chemical change occurring in a reaction. Combination or synthesis reactions are those in which two or more chemical elements or compounds unite to form a more complex product. Decomposition reactions are those in which a compound is decomposed into smaller compounds or elements. Single displacement reactions are characterized by an element being displaced by a more reactive element. Double displacement reactions represent those reactions in which two compounds exchange ions or bonds to form different compounds. The aim of this experiment is to study the reaction between sodium sulfate and barium chloride solutions and classify it as a combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, or double displacement reaction. Materials required: boiling tubes, solution of sodium sulfate and solution of barium chloride. Procedure: take a small quantity of sodium sulfate solution in a boiling tube. Then, take a small quantity of barium chloride solution in another boiling tube. Pour the barium chloride solution taken in the boiling tube into the boiling tube containing sodium sulfate solution. On adding, a white precipitate of barium sulfate is formed in the boiling tube. This confirms the presence of sulfate ions in the solution. Now keep the contents of the boiling tube undisturbed for 10 minutes. After 10 minutes, we can see that the white precipitate in the test tube settles to the bottom of the test tube. Now,
Decant the upper solution in the boiling tube into the beaker. Add a few drops of dilute HCl to the white precipitate of barium sulfate and shake the test tube well. You can observe that white precipitate remains insoluble in the dilute HCl. Here, a chemical reaction occurs between sodium sulfate and barium chloride to form barium sulfate and sodium chloride. This is a double displacement reaction in which sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions. तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी उसी एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे कहा जा रहा है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए आवश्यक सामग्रियां क्या क्या थी। तो क्योंकि आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये दोनों सोल्यूशंस आपको चाहिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपने बात की कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो भी केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं या जो भी कंपाउंड यूज कर रहे हैं, जैसे आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के मध्य आयंस का एक्सचेंज होगा। पहले वो दोनों अपने अपने आयंस में टूटेंगे, देन उन आयनों को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ओके। और उसके बाद आपके नए कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, ओके। सिमुलेटर पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इस टेस्ट ट्यूब में आप BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। ये बेरियम क्लोराइड आपने डाला, देन Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये डाला आपने, और अब यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर का जो आपको क्लियर सोल्यूशन है, डिकेंटेशन की प्रोसेस से आप इसको अलग कर देंगे, ओके। ये आपने अलग कर दिया और प्रेसिपिटेट इसी में बच गया। अब इस प्रेसिपिटेट में आप क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। प्रेसिपिटेट किसका है, बेरियम सल्फेट का है, ओके। ये आपने डाइल्यूट HCl उसमें ऐड किया और उसके बाद उसको डिसॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो प्रेसिपिटेट एज इट इज उसी में है, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ HCl में, ओके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है डाइल्यूट HCl में, ओके। चलिए, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। अवर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन करना ही हमारा क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहती थी, जब आपके जनरली केमिकल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपके या कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ते थे। सो बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, लेट्स फाइंड आउट व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, ओके। A combination reaction is a general category of chemical reaction. It may be defined as a chemical reaction in which two or more substances combine to form a single substance under suitable conditions, okay। होता क्या है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा आपके कंपाउंड हो सकते हैं, या आप क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो आपस में मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। उसी रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में ये सब चल रहा है, उस रिएक्शन को आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सिंथेसिस बिकॉज इन दीज रिएक्शंस न्यू सब्सटेंस आर सिंथेसाइज्ड। इनको संश्लेषण की अभिक्रिया भी कहा जाता है, जहां पर कि क्योंकि सिंथेसिस हो रही है एक नए सब्सटेंस की, एक नया सब्सटेंस बन रहा है वहां पर, इसलिए इनको सिंथेसिस भी कहा जाता है, ओके। कॉम्बिनेशन, द जनरल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, जैसे आप लिखते हैं A + B gives C, ओके। A और B आपस में मिलकर के C को एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दो आपके पास सब्सटेंसेस थे A और B, और वो जुड़ करके C बना रहे हैं, तो एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों तत्व हैं आपके, और दोनों तत्व आपस में मिल करके
एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि आपका सोडियम क्लोराइड है। यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच में। सिमिलरली नॉन मेटल्स में रिएक्ट विद हाईली एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके अतिरिक्त आयनिक कंपाउंड के अलावा कोवेलेंट कंपाउंड भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बना है तो ये आपका एक क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड होगा। Reaction between two or more elements. An example of this type of combination reaction is the reaction between a metal and a non-metal. Most metals react with non-metals to form ionic compounds. A good example of this would be, यहाँ पर क्या होता है, आपका कोई भी एलिमेंट है यहाँ पर, वो दूसरे किसी कंपाउंड के साथ जुड़ करके भी आपका क्या करता है? एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर नया कंपाउंड बन रहा है वो आपको बता रहा है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिजल्ट है। ओके, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं आपके। So reaction between elements and compounds and an element and a compound react to form another compound. Example, carbon monoxide reacts with oxygen gas to form carbon dioxide. यानी एक तत्व एक यौगिक से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बना रहा है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है आपका? पहला, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? थ्री टाइप्स के बोले ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। तो 3 टाइप में पहला टाइप क्या था? जहां पर एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे थे, जिसमें आपने बोला NaCl के साथ जुड़ रहा है या सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? कोई एलिमेंट आपका किसके साथ जुड़ सकता है? किसी कंपाउंड के साथ जुड़ेगा और फिर नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसके अलावा तीसरा टाइप क्या है? जब रिएक्शन होगी दो कंपाउंड्स के बीच में, यानी दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक नया यौगिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रही है और दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, तो ये एक नया यहाँ पर क्या है? कंपाउंड है और कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। ओके, सो मोस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। वाई? ज्यादातर जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो एक्सोथर्मिक क्यों होती है नेचर में? Combination reaction involve the formation of new bonds and this process releases a large amount of energy in the form of heat. Let us discuss some more example of combination reaction. Combination reaction में आपका होता क्या है? यहाँ पर रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, नए बंध बनते हैं और इस नए बंध के बनने की प्रक्रिया में एक लार्ज अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हीट के फॉर्म में उत्पन्न होती है। इसीलिए ये कैसे हैं? एक्सोथर्मिक है नेचर में। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो वहां पर स्लेक लाइम बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो इस केस में भी क्या होती है? ये हाईली विग्रस रिएक्शन होती है एंड एज वेल एज एक्सोथर्मिक। ओके, ऊष्माक्षेपी जिनको आप लोग कहते हैं। कंबशन रिएक्शन ऑफ कोल एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोजन आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर कार्बन का दहन जिसे आप कहते हैं, दहन यानी बेसिकली जलने की प्रक्रिया, तो जहां पर दहन हो रहा है वहां पर तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी आपकी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी और हीट के फॉर्म में उत्पन्न हो रही है। साथ ही क्या बोला जा रहा है? कोयले का जलना, और वो कोयला जल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जलना भी क्या है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है, एक ही कंपाउंड बना रहा है, दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? NH4Cl बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बनाती है, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जबकि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है। ओके, इसके अलावा आयन आपका सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और फेरस सल्फाइड बनाता है यहाँ पर, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया आपका बनता है, तो वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और
सोडियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। ओके, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे थ्योरी को, देन हम आगे चलेंगे, प्रोसीजर की बात करेंगे। इन रिएक्शंस को आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए आगे हम इसके प्रोसीजर की बात करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर में आपका क्या क्या है, सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री आपको चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है वाटर के साथ अगर, तो आपको क्या क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, क्विकलाइम जिसको आपका कहा जाता है। इसके अलावा एक जेट ट्यूब चाहिए आपको, बीकर आपको चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये 5 चीजें आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट में आएंगी। ये 5 सामग्री आप लोग नोट कर लेंगे। प्रोसीजर क्या है आपके पास, एज परफॉर्म्ड इन अ रियल लैब। रियल लैब में यानी कि आपकी जो प्रयोगशाला है, आपकी जो लेबोरेटरी है, उसमें आप किस तरह से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। बीकर में आप लोग क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे। ठीक है, then slowly add water to the quicklime taken in the beaker. Pour enough water so that the quicklime remains submerged in water. Okay, क्या करेंगे आप, slowly add water to the quicklime taken in the beaker. जो बीकर में आपने क्विक लाइम लिया है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करेंगे। ओके, पोर इनफ वाटर, आप क्या डालेंगे, जितनी मात्रा में आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप पानी उसमें डालेंगे, सो दैट द क्विक लाइम रिमेन सबमर्ज इन दी वाटर, ताकि आपका जो क्विक लाइम है वो पानी में डूबा रहे। ओके, इस तरह से आप उसको ऐड करेंगे। देन टच द बीकर विथ फिंगर्स टू नोट द टेम्परेचर। अब आप क्या करेंगे, बीकर से, आपने बीकर में क्या किया, क्विक लाइम को ऐड कर दिया, फिर आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। अब आप क्या करेंगे, बाहर से बीकर की जो वॉल है उसको टच करें। ठीक है, और टच करने से टेम्परेचर नोट करने का मतलब क्या है कि आप बताएंगे कि क्या पहले कैसा टेम्परेचर था और जब आपने वाटर ऐड किया दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। दोनों का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, दोनों के बीच में रिएक्शन के बाद आपका बीकर का तापमान जो है बढ़ा या नहीं बढ़ा, यानी कि बीकर गर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर बीकर गर्म होता है तो दैट मीन्स कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, उसके साथ साथ कैसी है, एक्सोथर्मिक नेचर की है, यानी वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, सो लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए आप क्या करेंगे, बीकर को अनडिस्टर्ब रखेंगे, यानी उसको हिलाएंगे नहीं। देन आपका क्या होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द बीकर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ब्लो एक्सहेल्ड एयर इनटू द लाइम वाटर। अब क्या करेंगे, कुछ समय के लिए आपने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है, कुछ ऊपर का पानी आपको क्लियर सा लगे, तो उसको आप निकाल लेंगे क्लियर सोल्यूशन को, और उसमें टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे उसे, और क्या करेंगे, उसमें एक्सहेल करेंगे एयर को, यानी ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे उसमें, और तब आप उसमें क्या करेंगे, चेंजेस देखिए। ओके, चलिए ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलेगी जब ऐसा होता है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम अ सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इज फॉर्म। जब क्विक लाइम में आपने क्या किया, वाटर को ऐड किया, तो एक निलंबन जैसा, सस्पेंशन किसे कहा जाता है, निलंबन। ठीक है, वैसा आपको कुछ बनता हुआ दिखता है, जो किसका है, स्लेग्ड लाइम का है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कह रहे थे। ऑन टचिंग द बीकर वी फील इट इज हॉट। जब हम बीकर को टच करते हैं, उसको छूते हैं, तो हमें कैसा दिखता है, हमें कैसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि बीकर गर्म हो गया है। गर्म होने का मतलब तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि हुई है। अ क्लियर सोल्यूशन अपीयर्स एज द सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम सेटल्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द बीकर एंड ऑन बॉइलिंग exhaled air that contains sufficient carbon dioxide lime water turns milky। और जैसे ही हम उसमें एयर ब्लो करेंगे, सफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका जो लाइम वाटर है, जिसको आप क्लियर सोल्यूशन कह रहे थे, वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, यानी उसने रिएक्ट कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया, यानी दूधिया कलर का वो हो गया। इन्फरेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अगर ये सारी ऑब्जर्वेशन है तो इनका रिजल्ट क्या है, यानी ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सस्पेंशन फॉर्म हो रहा है स्लेग लाइन का, तो उसका मतलब क्या है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? सो क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर बीकर जो है आपका वो टच करने पर आपको हॉट फील होता है, गर्म महसूस हो रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पर जो रिएक्शन हुई है वो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, यानी कि वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हुई है। रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर है जो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के बीच में हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर बन रहा है। ओके, स्लेग लाइम इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट फॉर्म्स अ सस्पेंशन ऑफ स्लेग लाइम इन वाटर। स्लेग लाइम चूंकि बन गया है आफ्टर क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन के बाद, ऐसा आप बोलेंगे, तो जो स्लेग लाइम है वो स्लाइटली इन कैसा है? सॉल्युबल है वाटर में, इस वजह से वो क्या बना रहा है? सस्पेंशन जैसा कुछ बना रहा है, जिसको आप स्लेग लाइम इन वाटर कह रहे हैं। द क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर द सस्पेंशन सेटल्स इन इज कॉल्ड लाइम वाटर। जब आपका सस्पेंशन नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, ऊपर जो आपको क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है उसको आप क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है ना? Then exhaled air contains CO2 which turns lime water milky. Exhaled air जब आप उसमें ब्लो करेंगे तो उसमें क्या है? आपने जेट का एयर जेट का यूज किया था ना, तो उसका यूज क्यों कर रहे हो? उसका यूज कर रहे हैं आपकी ताकि एयर को ब्लो कर सके उस लाइम वाटर में, और इस वजह से उसका लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो द रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली हमें इसमें करना क्या था? हमने स्टडी करनी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है ना, यानी संयोजन अभिक्रिया की, जो कि आपका क्या कहता है कि दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी अभिक्रिया कराई वाटर से, दो आपके पास सब्सटेंसेस आ गए, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर, दोनों ने मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही आपकी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, चलिए अब आप प्रोसीजर नोट कर लेंगे, इसका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्रोसीजर सब नोट कर लेंगे, देन हम एनिमेटेड वीडियो की बात करेंगे। ओके, चलिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने दो प्रैक्टिकल देखे, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड हमने स्टार्ट किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और सेम प्रोसीजर आप अपनी लैब में भी फॉलो करेंगे, देन आप मुझे रिजल्ट बताएंगे कि क्या रिजल्ट आपके आए। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी प्रैक्टिकल का एनिमेटेड वीडियो और सिमुलेटर पे काम करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।